Okay, students, so we are going to move on further with the next type of soil. Not the next type of soil. Like in the previous class, we studied the different types of soil that included alluvial soil, black soil, red soil, and laterite soil. Okay, first we are going to see how those different types of soils were formed. I'll just give you a quick recap of it and the areas where it is found. So alluvial soil is formed due to the deposition of sediments in the river basin. That's the reason alluvial soil is also termed as riverine soil. Area wise, it is found like there are three parts in it: inland alluvium, coastal alluvium, and deltaic alluvium. And the second type of soil is black soil. And in black soil, it is told that black soil is formed due to the denudation of volcanic rock. Alright. The area where it is found is Maharashtra and the surrounding areas. The third type of soil is red soil. Red soil is formed due to the denudation of old crystalline metamorphic rock. Then the fourth type of soil is laterite soil. Laterite soil is formed due to the weathering of lateritic rock, that is due to heavy rainfall and high temperature. And usually you find laterite soil in the summits of Sahyadris and Peninsula Plateau and also other mountain ranges. अभी जो next part हम लोग पढ़ने वाले हैं is soil erosion. Now, what does soil erosion actually mean? Like we all know, soil erosion means what? It is a removal of top layer of soil. And removal of top layer of soil क्यों होता है? जब भी बहुत तेज हवा, that is because of wind, या when there is heavy rainfall, that is because of water, or because of deforestation of or human grazing, that is human activity. So there are three different causes of soil erosion to actually take place. First one is water, next one is wind, and the third one is human activities. Alright, so starting with water. Water में सबसे first हम लोग को दिया है sheet erosion, second one is rill erosion, third gully erosion, fourth leaching, next sea or shore erosion, and stream banking जो एक्चुअल में तुम लोग के पोर्शन में सिलेबस में नहीं है. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज शीट इरोजन. अब शीट इरोजन कैसे होता है? सपोज ये माउंटेन है, ठीक है. माउंटेन से हम सबको मालूम है झाड़ होता है. अब बहुत हवा आती है या बारिश आती है तो ये झाड़ है ना, कभी कभी कैसा होता है, अनरूट हो जाता है, ठीक है. मतलब वो रूट से पूरा उखड़ जाता है, जिसके वजह से रूट्स और जो सॉइल है वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं. तो उधर सब जगह सॉइल स्प्रेड होता है. और जब बहुत बारिश गिरता है ना, तो वो पूरा का पूरा बारिश है ना, सॉइल को अपने साथ ऊपर से नीचे लेकर आता है. Hence you would actually see there would be sheet of soil which would be actually formed, okay, which would be actually formed on the entire mountain range. तो उसको कहते हैं शीट इरोजन. और जब ये शीट इरोजन थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए लास्ट करता है तो इट लीड्स टू रिल इरोजन. रिल इरोजन मतलब क्या? ये शीट्स में ना ऐसे पतले पतले लाइन आना स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब समथिंग लाइक दिस, द लाइन्स एक्चुअली स्टार्ट कमिंग बाय. तो वो जब लाइंस आते हैं ना, तो उसको और कुछ नहीं, उसको फिंगर लाइक ग्रूव्स करके टर्म किया जाता है. एंड दैट इज नथिंग बट इट इज टर्म्ड एज रिल इरोजन. द थर्ड वन इज गली इरोजन. गली इरोजन में दे एक्चुअली मेक गलीज, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी एक जगह अक्यूमुलेट नहीं होता है, इट जस्ट गोज अहेड. ओके, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, लाइक वी ऑल नो. अपने एरिया में कभी बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है ऐसे कुछ, तो पानी जमा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा गड्ढा जैसा बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं ताकि पानी आगे जाए. लीचिंग इज व्हाट वी ऑलरेडी स्टडीड ड्यूरिंग लैटराइट सॉइल फॉर्मेशन, and I'll just give you a quick recap of leaching as well. लीचिंग में हम लोग ने देखा था, जब बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है तो सॉइल का ऊपर वाले लेयर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे पॉपुलेट होते हैं, एंड हेंस सॉइल का जो सिलिका कंटेंट है वो निकल जाता है. अब जब सॉइल का सिलिका कंटेंट निकलता है एंड ऑल्सो लाइम कंटेंट निकलता है, उसमें सिर्फ एक कंपाउंड रह जाता है, दैट इज एल्यूमिनियम कंपाउंड. एंड
दैट्स नथिंग बट इट इज टर्म्ड इज डीसिलिकेशन. सो दैट इज लीचिंग. फिर होता है सी और शोर इरोजन. सी और शोर इरोजन मतलब कैसे होता है, तुम लोग ने देखा रहेगा बीचेस और सब में कैसे रहता है मालूम है, कभी कभी ना ऐसे नज़दीक में से क्लिफ जैसे रहेगा या पत्थर या बोल्डर या ऐसे कुछ रहता है, तो ना ये वेव्स ऐसे आते हैं और ये लोग जोर जोर से ना ऐसे हिट करते हैं. ओके, सो व्हेन इट हिट्स द क्लिफ एंड ऑल, तो इधर से छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं एंड हेंस रिट्रीटिंग वेव्स. रिट्रीटिंग वेव्स मतलब कौन से होते हैं, यही वेव्स जो आते हैं एंड दे गो बैक. सो व्हेन दे कम and then when they are going back they carry these small sediments along with them. It's basically they are taking it off. So that's nothing but it is called as sea or shore erosion. So now remember इसमें जो sheet, rill and gully ये तीन please अच्छे से पढ़ना because these three are really important for distinguished question. Leaching is again important which we already covered up in the sea or in the laterite soil, and other we are going to, I would also say that those are also important but not that, but still you need to study. अभी जो next दिया है ना, that is soil erosion due to human action. अब हम सबको पता है अपने कंट्री में फॉरेस्टेड एरियाज अच्छा खासा था पहले, लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से डिफॉरेस्टेशन इज जस्ट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, एंड डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन for the soil erosion to actually start taking place. फिर थोड़े बहुत है ना अपनी कंट्री में रीजन्स हैं जैसे आउटर हिमालय, जैसे शिवालिक, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है एंड हेंस वो लोग कहते हैं कि वेजिटेशन इतना उधर है कि डिफॉरेस्टेशन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोग वो यूज़ करते हैं एंड अगेन सॉइल इरोजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. अगेन देर इज ग्रेजिंग एंड ऑल. ग्रेजिंग में हम सिंपल उसमें बोलेंगे लाइक गाय भैंस जब चरते हैं तो ना दिस गाय भैंस आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दे आर नॉट गोइंग टू ईट लाइक हाउ वी ईट, दे आर गोइंग टू ईट लाइक हाउ दे वॉन्ट टू, एंड वेन दे ईट सो वॉट हैपन्स इज द एक्चुअली द प्लांट्स द रूट्स जो होता है सॉइल का वो अलग हो जाता है, सॉइल से अलग होता है रूट्स, and that's how it leads to soil erosion. Those are the basic things. I am not focusing much on the human activities because the next part which I'm going to cover up that is causes of soil erosion would be given to you all more in detail. The next type is soil erosion by wind. नाउ सॉइल इरोजन बाय विंड में क्या बताया जाता है, विंड इरोजन रिफर्स टू द मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड. इट ऑकर्स व्हेन द सॉइल डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन इज एक्सपोज्ड टू हाई वेलोसिटी विंड. मतलब बहुत जब ज़्यादा बारिश होता है बहुत ज़्यादा हवा होता है और उसके वजह से जब वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड जब सॉइल लूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हवा के वजह से जब सॉइल इरोड हो जाता है ना, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन बाय विंड. विंड इरोजन रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय द विंड्स. तो जब ये विंड ब्लो होता है ना तो सॉइल के अंदर जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो निकाल देता है, एंड वो निकालने के वजह से ही वो लोग बताते हैं कि द लेवल ऑफ सॉइल इरोजन इज मोर. ना सी इरोजन बाय विंड इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ वाटर वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. टिल आई पुट द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ causes of soil erosion, I would like you guys to actually go through the topic which we have just covered up now.
ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन. अब ये मेजर रीजन है अपने कंट्री में सॉइल इरोजन एक्चुअल में होता है. द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ पॉइंट आर almost relatable, so listen to the explanation together. Heavy population pressure on land. Now what happens is we all know अपने कंट्री में जो फॉरेस्ट एरिया है वो जस्ट 22.4% है, विच इज़ रियली वेरी लेस, एंड द पॉपुलेशन इज़ रियली वेरी हाई. तो जिस स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना, उस स्पीड में फॉरेस्टेशन नहीं बढ़ रहा है लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. अब क्या होता है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए. अब उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो जो भी फॉरेस्टेड एरियाज है ना उसको कट किया जाता है एंड फिर वहाँ पे घर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द डिफॉरेस्टेशन लेवल इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, एंड दिस डिफॉरेस्टेशन इज एक्चुअल कॉज फॉर द सॉइल इरोजन टू टेक प्लेस. सो ड्यू टू हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, deforestation happens, and which is the ultimate reason for the soil erosion to take place. The second one is nature of rainfall. Like we all know, अपने कंट्री में 80 to 90% जो रेनफॉल है वो हमें जून टू सितंबर में मिलता है. दैट्स अ मानसून सीजन. ऑल्सो इट इज़ बीइंग टोल्ड दैट इतना ज़्यादा बारिश गिरता है कि वो फ्लड कंडीशंस होता है, और कभी बारिश गिरता ही नहीं है कि ड्रॉट कंडीशंस होता है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सो मच ऑफ वेरिएशंस इन द रेनफॉल, तो एट टाइम्स इट लीड्स टू सॉइल इरोजन. अब नेचर ऑफ रेनफॉल में जब बहुत ज़्यादा बारिश है ना फ्लड, तो सॉइल इरोजन बाय वाटर बोल सकते हैं, और जब बारिश गिरता नहीं और वो होता है ड्रॉट, तो बोलते हैं सॉइल इरोजन बाय विंड. ठीक है. द थर्ड वन इज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग मतलब क्या, अभी अपना इंडिया में ना एनिमल्स जैसे पर्टिकुलरली कैटल्स बहुत ज़्यादा है फुल वर्ल्ड में, एंड कैटल फ्रीली ग्रेज इन ओपन लैंड्स मेकिंग द बेयर ऑफ वेजिटेशन. मतलब वो लोग कोई भी, मतलब वो लोग जिस खेती में लेके जाते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रेजिंग ओवर देयर, दे हैव नो लिमिटेशंस, एंड वो पूरा का पूरा लैंड है ना बैरन लैंड हो जाता है. विंड्स कैरी अवे द ड्राई सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द बेयर लैंडस्केप. जैसे कि उधर कुछ है ही नहीं, तो हवा की वजह से जो भी मिट्टी है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है. ऑल्सो इट इज़ टोल्ड दैट इन आवर कंट्री लाइक इंडिया, राजस्थान में सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ बाई विंड्स. लाइक द मोमेंट यू हियर द टर्म, हियर द नेम ऑफ द स्टेट राजस्थान, द ओनली थिंग दैट स्ट्राइक्स इनटू हर हेड इज डेजर्टेड एरिया, और वहाँ पे विंड इरोजन का इसके लिए प्रपोर्शन भी ज़्यादा है. नेक्स्ट है बैड फार्मिंग टेक्निक्स. बैड फार्मिंग टेक्निक्स में ना क्या बताया जाता है, अपने इंडिया में आज भी हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स ही यूज़ करते हैं जो एक्चुअली इनएप्रोप्रिएट है. न्यू टेक्निक्स अगर हम फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जिसके वजह से सॉइल इरोजन का प्रोपोर्शन को काफ़ी कम किया जा सकता है. लाइक लेट मी एक्सप्लेन टू यू ऑल वन टाइप ऑफ कल्टिवेशन, दैट्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन. अब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता क्या है, ध्यान दो. शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब क्या होता है, सपोज आई एज एन इंडिविजुअल, ओके, आई डोंट हैव माई पीस ऑफ लैंड बट आई वॉन्ट टू डू फार्मिंग एक्टिविटी. So what I do is I will go and search of piece of land which is already covered with trees. What is the purpose of searching a piece of land which is covered with trees is the purpose is if an area is covered with trees, I go there, I cut the trees. After cutting the trees, whatever stems and roots and whatever is left, I'll set it all on fire. So it all gets converted into ash. Ash by itself has a property of adding the fertility to the soil. I will evenly spread the ash in the entire field, and I'll start growing the crops. I am not making use of fertilizers, okay? I am relying entirely on ash for its fertility. अब क्या होता है, 3-4 साल तक है ना प्रोडक्शन अच्छा खासा मिलता है, उसके बाद में ना प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है. एंड फिर व्हाट आई डू इज आई विल गो टू सम अदर प्लेस एंड प्रैक्टिस द एंटायर थिंग अगेन. मतलब आई अगेन सेलेक्ट अ पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, सेट इट ऑल ऑन फायर, कैरी ऑन द फार्मिंग, 3-4 years production, then shift somewhere else. That's nothing but it is termed as shifting cultivation. And shifting cultivation is actually banned by our country's government, but still in certain part of our country it is practiced. शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम स्लैश बर्न कल्टिवेशन करके भी कहते हैं. नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे तो उसको जूम कल्टिवेशन करके कहते हैं. सदर्न इंडिया में आएंगे तो उसको पोंडू कल्टिवेशन करके टर्म किया जाता है.
सो दैट इज बैड फार्मिंग टेक्निक, जहाँ पे हम लोग ने देखा अब वो बैरन लैंड है, मतलब 3-4 साल तक मुझे प्रोडक्शन मिल गया, उसके बाद में क्या, उसके बाद तो वो लैंड ऐसी ही है बैरन, तो विंड के वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा सॉइल इरोड हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या याद रखने का है, इसमें ना अलग अलग रीजन, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, शिवालिक, हिली एरियाज, ये सारे एरियाज हम लोग को पता है कि अपने कंट्री में दे आर स्टीप एंड दे रिसीव रियली हैवी रेनफॉल। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है ना, तो पानी ऊपर से क्या करेगा, मिट्टी को साथ में नीचे लेकर आएगा एंड इट विल इरोड द पार्ट। सो दैट्स हाउ दे से दैट हिली एरिया में this soil erosion is maximum. And the sixth point we have already covered up. Now listen, next part which I am going to do is the regions of soil erosion. Now understand the difference to what I am saying. Regions of soil erosion में तुम लोग को क्या एक्चुअल में याद रखने का है, उसमें ना तुम लोग को फर्स्ट पैराग्राफ में ना स्टेट्स के नाम दिए, वो स्टेट्स का नाम तुम लोग को नहीं करना है, लेकिन तुम लोग को उसके बाद में ना वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स 6 पॉइंट्स दिए हैं। तो वो 6 पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट जो तुम लोग को दिया है दैट इज बैडलैंड्स ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर विच इज़ देयर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय। पिडमॉन्ट जोन मतलब क्या होता है, जब भी माउंटेन प्लेन को मिलता है तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना माउंटेन और प्लेन का, उसको पिडमॉन्ट जोन करके कहते हैं। Then is Chota Nagpur Plateau region which lies in the state of Jharkhand. Tapi Sabarmati Valley region which is again in the state of Gujarat. Regar soil area in the state of Maharashtra. Dry areas of Rajasthan, Gujarat and Haryana. अब मैंने ये रीड किया है ना, मेरे पास टाइम है करके मैंने रीड नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, so please study this really very well. Now there might be 2 types of questions. The first one is which are the areas that is worst affected by soil erosion. तो ये जो 6 पॉइंट्स है ना, वो फर्स्ट एरियाज अगर बोला तो तुमको ये लिखना है। अगर तुमको मेंशन किया व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट विच आर द डिफरेंट स्टेट्स विच इज अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, तब तुम बोलेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे। तो जस्ट वो 6 पॉइंट्स की एग्जैक्टली ऊपर तुमको स्टेट्स दिया है, तो वो स्टेट्स बोलना है। अगर स्टेट्स नहीं बोला है और तुमको रीजन्स बोला है तो प्लीज़ ये रीजन्स लिखो जो मैंने एक्सप्लेन किया। आज के लेक्चर के लिए ओनली दिस मच इज सफिशिएंट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू मीट, I'll move on further with the methods of soil erosion, soil conservation programs, the need of it and the soil conservation scheme. I hope you guys are studying. Please do study and go through whatever I have taught you all. Also that after this they are going to put all the worksheets in the group. Please study well and please solve those worksheets as well. Thank you.